میں خیر مقدم کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کا، اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس میں اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا تو مجھے اس بات پر خوشی بھی ہے اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ پریس کانفرنس سے سیدھے میرے غریب خانے پہ تشریف لائے بمام گلدستے کے، اور بجائے اس کے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا، انہوں نے مجھے اس پر مبارکباد دی، اور پھر اپنے الفاظ میں انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہیں، آج ہم اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنگوں ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی اور ایک امید برائی، اور بقول مولانا زاہد الراحجی صاحب کے کہ حکومت ٹریک پہ آ گئی ہے۔ اب ٹریک پہ آنے کے بعد اس کو چلانا بھی تو ہے۔ تو یہ جو آج کا سیمینار ہے یہ در حقیقت حکومت کو اب آگے چلانے کے لیے قومی اور اجتماعی طور پر ہم نے ایک محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ایک تجویز تو یہ کہ صرف علماء کرام ہوں، تمام مکاتب فکر کے ہوں۔ سو علماء کرام تو اول دن سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ابہام ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، کاروباری طبقہ، تاجر برادری وہ بھی اس سیمینار کا بنیادی حصہ بنے، اور ان کی طرف سے بھی ایک میسج جائے کہ یہ مسئلہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان پوری قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے اور ایک اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ قوم ایسے اقدامات میں کس طرح حکومت کو سپورٹ دینے اور ان کو طاقتور بنانے اور ان کو ہمت دلانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بہرحال یہاں ذکر کیا گیا، اور جب اسٹیٹ بینک کے قیام کا افتتاحی جلسہ تھا اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ملکی معیشت کو اسلامی تعلیمات پر مبنی رکھنے کی بات کی اور مغرب کا طرز معیشت کو انسانیت کی مشکلات کا سبب قرار دیا، سو آج ہم سمجھتے ہیں کہ تاخیر سے صحیح لیکن پاکستان کی بنیاد اور اساس، اسٹیٹ بینک کی بنیاد اور اساس میں ان اکابرین کی جو آراء ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور بانی پاکستان کی فکر کی روشنی میں بھی اس طرف مؤثر اقدامات کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں مشکل یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آنے کا مطلب جیسے ہم نے منزل حاصل کر لی۔ میں اپنے سیاسی زندگی کی تجربات کی بنیاد پر بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست میں اقتدار میں آنا منزل نہیں ہے، یہ بھی منزل کی طرف آگے بڑھنے کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ حکومت میں آپ آئے، اب اس وقت کا جو آپ کا حکومتی اثر رسوخ ہے اور وہ وسائل ہیں، آپ کس قدر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں،
फिर जाहिर है कुछ पता नहीं अगली हुकूमत किसकी आती है, वो क्या तब्दीलियाँ लाती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ जब आप मुअस्सर अंदाज के साथ नाफिज करते हैं वो जगह पकड़ती हैं और आइंदा हुकूमतें भी उनको तसलसल देने पर मजबूर होती हैं। हालांकि हमने देखा कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कितने अहम कवानीन, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट आती है कि जिसके नज़दीक उन पॉलिसियों का, उन कानून साजियों की कोई अहमियत नहीं होती या फिक्री तौर पर उसकी मुखालिफ होती है, वो उनको खामोश कर देती है, मुंजमद कर देती है। हम आज इसलिए बैठे हैं कि कोई फैसला अगर आता है और वो आईन और कानून और शरीयत का तकाजा है, एक मुसलमान कौम की हैसियत से हमारे एतकादात का तकाजा है, वो जुमूद और इंजमात का शिकार ना हो। उसे हमने तसल्सल देना है, उसे हमने आगे बढ़ाना है। मैं तो समझता हूं कि हमारा आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। एक पार्टी, एक फर्द हो सकता है अगर वो कहे कि अवाम की हाकिमियत, वो भला अपनी बात करे, लेकिन मेरी रियासत क्या कहती है? रियासत की ज़बान मेरा आईन है और आईन कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकिमियत होगी। लिहाजा हम रियासत की ज़बान में बात करेंगे, हम किसी पार्टी या गिरोह की ज़बान में बात नहीं करेंगे। हमारे लिए रियासत की ज़बान हुज्जत है, हमारे लिए आईन की ज़बान हुज्जत है। और जब मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा, तो फिर ये पाकिस्तान के आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और पाकिस्तान के आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसका एक पिलर भी गिरता है तो पूरा आईन गिर जाता है और आप असरनौ एक आईन साज असेंबली बनाने पर मजबूर होंगे ताकि वो नए सिरे से पाकिस्तान का आईन बनाए। हम इस हद तक इसको अहमियत देते हैं। फिर हमारा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा और ये कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। सो फाइनेंशियल बिल जब हर साल हम पास करते हैं, सन 73 के आईन के बन जाने के बाद सारे आईन हमारे सूद पर मबनी होते हैं, सारे बजट सूद पर मबनी होते हैं, सारे हमारे फाइनेंशियल बिल सूद पर मबनी होते हैं और ये बहुत बड़ी वायलेशन है अपने मुल्क के आईन की और उसके नजरिए की और उसके अकीदे की। अब हम ट्रैक पे आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम आगे बढ़ें मुअस्सर इक़दामात के साथ। आपका ये इज्तिमा उन मुअस्सर इक़दामात के लिए रहनुमाई करने को है, उसके लिए तजावीज़ देने को है और जहां इस स्टेज पर जो करारदादें पेश हुई हैं और जो गुफ्तगू हुई है वो इंशाअल्लाह हुकूमत के लिए रहनुमाई का काम देंगी। मुझे बार बार इशारा किया जाता है आप हुकूमत में हैं, इन सब को तजर्बा है और मेरी भी जो 35-40 साल सियासी तजर्बा है। हुकूमत में होते हुए होने का माना ये नहीं है कि मेरी पार्टी ने या मैंने अपने नज़रिए को तहलील कर दिया है। हम हुकूमत में रहते हुए अगर कोई नज़रियाती मसला आता है अपनी हुकूमत के साथ बिगड़ जाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि नहीं आपका ये इक़दाम अगर गलत है तो इस्लाह की तरफ आना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना एक तवील अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी है और आप यकीन जानिए कि जब हमारी मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो गई थी और हम ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़े थे, दिवालिया होने के किनारे खड़े थे, तो ये वो पहला शख्स है जिसके बारे में मेरी ये सोच हो गई कि पहली बार रियासत को एक बंदे की ज़रूरत पड़ गई और रियासत को इंतज़ामात करने पड़े कि इसहाक डार साहब आएँ और मुल्क की मईशत को संभालें। और जो ही वो तशरीफ़ लाए एयरपोर्ट पर उतरे, एकदम से पता नहीं
12-15 रुपए डॉलर गिर गया। डॉलर ऐसा घबराया इनसे कि एकदम उसको चूल्हे हिल गई। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर को उठा, लेकिन बहरहाल एक ऐसी दलदल में हम फंसे हुए हैं कि उस दलदल से निकलना कोई आसान काम नहीं है। जहां 22-25 अरब डॉलर का हमारा रिजर्व था, आज हम सोचते हैं कि अगले 2 महीनों में हम तनख्वाहें कैसे देंगे। इस सारी मुश्किल में कुछ मुस्बत इक़दामात जिसका यकीनन जिक्र जनाब वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे कि हम ग्रे लिस्ट के आखिरी किनारे पर थे और ब्लैक लिस्ट के किनारे पहुंच चुके थे, वहां से हम वापस वाइट लिस्ट में आने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाइट लिस्ट के स्टेट्स में शुमार होने लगा है। तो इस एतबार से ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मुस्बत इशारात हैं। मैं मईशत का माहिर तो नहीं हूँ और नहीं इस हवाले से मैं कोई दावा रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का मदार मईशत पर होता है। दिफाई क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती है। हाँ, जब कबायली ज़माने थे तो दिफाई क़ुव्वत वो पहली हैसियत रखती थी, माशी क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती थी। अमन हो और मईशत हो, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं रियासत के जिम्मेदारियों में से। कुरान करीम ने ममलकती और रियासती ज़िंदगी में 2 ही बातों का जिक्र किया है, एक अमन और एक मईशत। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअि वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। जब आबादियों ने अल्लाह की नेमतों का कुफ़रान किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको 2 मुसीबतों में मुब्तला कर दिया, खौफ और बदअमनी और भूख और इफ़लास में। आज हम इन्हीं 2 चीज़ों से गुजर रहे हैं। हमने अपने मुस्तक़बिल को संवारना है, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अमन व आशती और खुशहाल मईशत, ये 2 हमारे गोल्स हैं जिसे हमने अचीव करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है। मैं मौलाना मुफ्ती मुतक़ी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस हवाले से उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया और मैं एक तवील ज़माने से इनके साथ वाबस्ता हूँ। जब सरकार के माहौल में हमें कोई सूद से पाक मईशत नहीं मिल रही थी और हमारे बैंकों का निज़ाम सूद से अटा हुआ था, तो आप ही ने प्राइवेट सेक्टर में इस्लामी बैंकारी का आगाज़ किया था। और ये कि हम सरकार पर क्यों इन्हिसार करें, हम एक प्राइवेट सेक्टर में भी तो एक ऐसा निज़ाम पब्लिक को दे सकते हैं कि जहां लोग पैसा रखें, कर्ज़े लें और कर्ज़े वापस करें और बग़ैर सूद के करें और बग़ैर सूद के साथ लोगों के साथ कारोबार करें। तो ये एक अच्छी काविश थी जो आज एक नई स्टेज पर पहुंची है और इससे आगे हमने अब इसको बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरख्वास्त कर